Vista Learning and Development session. Today we are discussing regarding the emerging human resource information in the organization. And as far as the Career Vista is conducting different training and development, learning and development programs for the graduates and the corporate sector, whose main mission is that building the pathway between the institutional and the corporate sector. So welcome to all of you in today's current era of the entrepreneurship management and brand management as well. And I will request Mr. Zishan Arif that started with the today's topic, that is emerging human resource management in the current era. These are all the university graduates of different universities which are holding over there and learn a lot of things and get the experiences with a lot of things. Thank you. First of all, Shanta, would request to all the attendees to ensure that their mic is muted, so others avoid the uh, uh, avoid the, Requested to all of you, please kindly mute the mics so that the session should be started. ensure that your mics are muted. Zishan sir, am Sure, I sir. audible properly? Yes, you are audible properly. Right. Right, ji. Assalamu alaikum to all our panelists and participants. This is Mohammad Zishan. Since most of the persons are basically listening me very first time, so let me introduce myself first. I am actually associated with the financial industry since last 20 years, and mainly dealing the anti-money laundering and countering financing terrorism uh, for those clients who are actually enrolling the first time with us in our company. Along with this, I am also the visiting faculty member in multiple universities teaching accounting and finance courses. Uh, by qualification, I am MPhil in finance. Plus, I am certified anti-money laundering professional as well from Institute of Financial Markets of Pakistan. So, with regards to our today's topic, emerging human values in the organizations, basically, मैंने like जब भी जिशान साहब again once again I would like to highlight that कि जब भी जिशान साहब जो हैं वो कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं तो उस हवाले से थोड़ा बहुत मुझे स्टडी करना पड़ता है और अगेन वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू जिशान साहब कि वो मुझे जब भी मैं इस तरह से मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ हमारे वेबिनार को ज्वाइन करता हूँ तो वो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि मैं अपनी ख्यालात जो हैं वो शेयर कर सकूँ इस हवाले से सो थैंक यू सो मच जिशान जावेद साहब राइट जी तो बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज इसके लिए पहले तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा पहले जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसको हम समझते हैं कि हाँ ये एक कुछ वैल्यूज जो हैं एक बीइंग एक गुड पर्सन जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए तो पहले तो हम थोड़ा उसको हाईलाइट करते हैं कि लाइक वो कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो प्रेफरेबली एक प्रोफेशनल के अंदर मौजूद होनी चाहिए हम ये देखते हैं कि लाइक जब हम किसी इंसान से मुलाकात करते हैं तो उसके अंदर हम मेनली क्या चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं कि उसकी पर्सनालिटी के हवाले से देख रहे होते हैं पर्सनालिटी इन विच सेंस क्या राइट व्हाट ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग राइट उसका बिहेवियर देखते हैं उसकी सेल्फ रिलायंस देखते हैं उसके मैनर्स देखते हैं और प्लस उसके एथिकल स्किल्स देखते हैं कि वो कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके इनिशिएटिव्स क्या हैं उसकी पंक्चुअलिटी के हवाले से उसकी ऑनरशिप के हवाले से देखते हैं फिर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि लाइक उसकी जो बेसिकली उसके अंदर पेशेंस कितना है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है उसके अंदर अपना सेल्फ कंट्रोल कितना है हाउ मच इंडिपेंडेंट ही इज प्लस फिर हम ये देखते हैं कि उसकी जो ऑनेस्टी है
उसकी विद रिगार्ड्स टू वर्क, उसकी जस्टिस है, उसकी नॉलेज है, हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी देख रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम एक पर्सन को से मुलाकात करते हैं, उससे मिलते हैं, तो उसका मतलब हम बहुत सारे एंगल से जो है वो उस इंसान को जज करते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आदर वी आर गोइंग टू लाइक कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन इन फ्यूचर और नॉट, और गोइंग टू कनेक्ट विद दैट पर्सन इन फ्यूचर और नॉट। तो जब ये तमाम चीज़ों के हवाले से एक सेटिस्फेक्शन डेवलप हो जाती है, लाइक विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन, कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, उसकी सोच क्या है। तो जब एक इंसान के अंदर हम ये तमाम खुसूसियात देखते हैं, तो लाइक अब मैं जब इसको एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करने की बात करूं, तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को भी तकरीबन कुछ इसी तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि एक पर्सन जिसको वो हायर कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो एटलीस्ट चलो अपने काम से अपनी सिंसेरिटी, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी जो प्योरिटी है, उस अपनी जो फेयरनेस है, अपनी ऑनेस्टी है, अपनी डिटर्मिनेशन है, या अपना जो नॉलेज है, वो तमाम चीजें उसके अंदर नजर आए, उसके काम में उसका कॉन्फिडेंस नजर आए, उसका कंट्रोल नजर आए। तो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी, तो एक कंपनी जो है जब एक एम्प्लॉय को हायर करती है, तो उसके इसका मतलब ये है कि फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से देखती है कि एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब, कि वो क्या करेगा या कंपनी उसको क्या जॉब असाइन करेगी। उससे हट के अगर बात की जाए तो ये तमाम चीजें उसके अंदर होनी चाहिए कि वो डीलिंग कैसे कर रहा हो, बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर किस तरीके से काम कर रहा है, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसी है। ये तमाम चीजें बेसिकली उसके अंदर नजर आ रही हो, तो जाके कंपनी जो है वो फिर डिसाइड करती है। जब भी तो एक लाइक अगर आप एक स्टैब्लिश स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके अंदर आपको क्या नजर आता है कि भाई एक कंपनी, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक कंपनी पहले किसी भी एम्प्लॉय को एक प्रोबेशन टाइम के ऊपर इंगेज करती है, उसको हायरिंग देती है, उसको चेक करती है, उसके बाद फिर देखती है कि इफ द पर्सन इज कैपेबल एनफ टू हायर, तो फिर जब वो सर्टिफिकेशन लेवल बिल्डअप हो जाता है, तो फिर जाके वो उसको हायरिंग देती है। और उसके बाद फिर वो बहुत कुछ उससे एक्सपेक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब। तो वो जो इस तरह की चीजें, लाइक हमें बीइंग एन एम्प्लॉय भी सोचने की जरूरत है कि हम जब एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं या एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो एटलीस्ट हमें अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ सिंसेरिटी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, विच इज एक्चुअली द मेन पार्ट फॉर योर जॉब। कि इफ देर इज नो इंटेग्रिटी, देन अल्टीमेटली फिर बाकी तमाम जो पॉइंट्स हैं, बाकी तमाम चीजें हैं, वो सेकेंडरी हो जाती हैं। बिकॉज इफ यू आर इंटैक्ट विद योर जॉब, विद योर वर्क, देन अल्टीमेटली you will be positive with your work, you will be doing what the right thing for your job। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी जो डिवोशन होगी वो उसकी अकॉर्डिंगली इवॉल्व होगी। हम थोड़ा सा अब अगर इस एंगल से देखें, लाइक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर हम आज से एक डिकेड पीछे या दो टू डिकेड्स बैक अगर हम जाके देखें, अगर हम देखें, तो हमें एक चीज नजर आती है कि जो स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए, तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फंक्शनल हैं, या जो पहले थी और अब नहीं है, आपको एक बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आता था कि लाइक स्पेशली मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफा हमारे बिजली के बिल में एक मसला हुआ था। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने इंगेज किया कि यार जरा इस मसले को रिजॉल्व कराओ। तो मैं जब गया वहां पे, तो मैंने देखा, और प्लस उन्होंने एक्टिविटीज क्या चल रही थी, लाइक जो कि मेन फोकस था वो ये कि nobody was actually owning that work, कि ये उसका काम है। नहीं भाई, आप उसके पास चले जाओ, ये काम उसका है, आप उसके पास चले जाओ, ये काम उसका है। मतलब लाइक इट्स लाइक अ बाउंसिंग, कि हम एक जगह से दूसरी जगह, वहां से वापस, फिर तीसरी जगह, वहां से वापस चौथी जगह, वो काम नहीं हुआ पा रहा। आज अगर हम देखें, तो
आज हम एक सेपरेट कर सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, और हम फोकस करते हैं या अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि अगर जो रिक्वायरमेंट हमारी है और वो काम अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम उसकी तरफ मूव करें, ना कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, अल्टीमेटली बहुत सारे जो आपके कंट्री लेवल के काम हैं डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के इदारे ही करेंगे। उसमें भी अगर आप देखें तो आज के टाइम पे आज इन टूडेज सिनेरियोज अगर आप सामने रखें तो उसके अंदर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब बकायदा बड़ी अच्छे लेवल पे और अच्छे काम करते हुए नजर आती हैं, प्रोफेशनली काम करते हुए नजर आती हैं। दे आर हायरिंग प्रोफेशनल पीपल, क्वालिफाइड पीपल। अलॉन्ग विद दिस, वो आपको अगर मैं थोड़ा सा लाइक हमारे चूंकि काफी सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो पैनलिस्ट है डेफिनेटली दे आर एक्सपीरियंस्ड, और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं चूंकि वो अभी या तो मार्केट के अंदर मौजूद हैं या फिर मार्केट के अंदर निकलेंगे, तो या इनफैक्ट उनका बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वास्ता पड़ता होगा आज, तो हम जिस एज से निकल के आ गए हैं तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे जो 2 डिकेड्स बैक जो गवर्नमेंट के इदारे थे, ये 1 डिकेड बैक जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे थे और आज जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क मौजूद है। बहुत सारे इदारे हमारे गवर्नमेंट के जो है वो काफी हद तक उन्होंने अपने आप को रिफाइन किया है, और उसके अंदर जो मेन रोल सबसे ज्यादा आता है तो वो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो कनेक्ट होता है कि जब आप ह्यूमन वैल्यूज को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की इटसेल्फ जो वैल्यूज होती हैं वो बाहर आती हैं और वो लोगों को नजर आना शुरू होती हैं। बहुत सारे हमारे इदारे जो कि पहले करप्ट हुआ करते थे, आज जब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, ह्यूमन वैल्यूज के हवाले से जब उन्होंने बातचीत की, तो उस पर काम करना शुरू किया, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर से फिर एक एक ऐसी चीज बाहर आना शुरू हुई जो लोगों को अपील हुई कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज बेहतर है, ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर इदारा बेहतर है। मैं अगर हमारा जो रेगुलेटर है, मतलब मैं चूंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करता हूँ, तो हमारा जो रेगुलेटर है दैट SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब चूंकि मैं अगर उसको उस वक्त देखूं जब मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया था, और उस वक्त जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पोजीशन थी या जो वो जिस तरीके लेवल पे काम करती थी या जिस तरीके से काम करती थी, और आज वो जिस तरीके से काम कर रही है, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। गवर्नमेंट का इदारा है, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क मौजूद है। आज हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लाइक उस वक्त हमें कितनी फटीग और कितनी परेशानियों के साथ किसी भी एक जॉब को परफॉर्म करवाने के लिए फिजिकली एक मैनुअल सेटअप पूरा एक डॉक्यूमेंट के साथ मूव कर रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि आज SECP जो है वो इटसेल्फ उसने अपने आप को इस कदर रिवाइव किया और इस कदर उसके अंदर जो है वो उसने चीज लेके आए हैं और टेक्नोलॉजिकली उन्होंने एडवांसमेंट कितनी की है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब पॉसिबल तब होता है जब आप अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली दोज एम्प्लॉयज जो कि परफॉर्म करते हैं। मैं जिस ग्रुप से बिलोंग करता हूं तो हमारे चेयरमैन साहब, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफिरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, 3-4 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो वो बेसिकली ही वाज द वन जिसने पूरा जो ग्रुप था हमारा वो स्टैब्लिश किया, और उस वक्त उनके जब भी वो मीटअप करते थे तो वो बेसिकली 3 वर्ड्स बड़े जो है ना वो खास तौर से उसको फोकस करते थे और उसको एम्फेसाइज करते थे। दैट वाज के 3 R's: रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो बेसिकली ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स आर प्योरली रिलेटेड विद दी ह्यूमन वैल्यू, कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या समझ रहे हो, उसको किस लेवल पे वैल्यू दे रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट, यस, ऑल एम्प्लॉयज आर रिस्पेक्ट, उनको उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, जस्ट लाइक जिस तरीके से आप एक क्लाइंट को रिस्पेक्ट देते हो। उनके काम को, उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना, उनको एनकरेज करना, और अकॉर्डिंगली
उनको रिवॉर्ड करना। ये चीज एक ह्यूमन वैल्यू की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर एक एम्प्लॉय जो कि अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स इन्वॉल्व करता है अपनी जॉब के साथ, और वो कंपनी उसकी जो एफर्ट्स हैं उसको ना सिर्फ रिकग्नाइज करती है बल्कि अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड करती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो ह्यूमन वैल्यूज को ना सिर्फ समझती है, उसको बल्कि इम्प्लीमेंट भी करती है। और अल्टीमेटली जो आउटकम्स निकल के आते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर उनके ऊपर मजीद काम करती है और उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो ये बेसिकली अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं साथ सबको मिला के बात नहीं कर रहा, अभी भी कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि उस लेवल पे काम करते हैं कि इंसान जाने 1000 दफा जाते हुए वहां पे सोचेगा। लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की काफी बेहतर हो चुकी हैं, चूंकि वो उसका मेन रीजन वही है कि वो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो निशान जावेद साहब, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। तो आई बिलीव के बाकियों के पास भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डिफरेंट मटेरियल होगा, तो कुछ उनकी तरफ से भी एडवांटेज गेन करते हैं। थैंक यू सो मच। Ji, thank you so much, Zishan sir. Thank you so much. We have over here Noshin Vakas, an educationist and a project head of a unique group of institutions as well. I will request Noshin. She is also a Lahore chapter head as well, and serving there with us with the training and development programs. So I will requested Ms. Noshin to express ideas and views, please. जी अस्सलाम आज वालेकुम स्क्रीन एवरीवन। इतनी फुल है कि लोग नजर नहीं आ रहे। एवरीवन इज लिसनिंग टू मी? Yes, yes, yes. Yes, we ओके can. ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सर जिशान आरिफ, यू आर ऑलवेज बीन अ ग्रेट स्पीकर हियर। जब भी आपका लेक्चर सुना तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, आपने काफ़ी चीज़ें एलेबोरेट की हैं। जैसे आपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया है कि पहले क्या था अब क्या हो रहा है, और उसके अलावा आपने जो 3R प्रिंसिपल बताया, डेफिनेटली अगर एक इंस्टीट्यूशन में हम एम्प्लॉय की रिप्यूट का और उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते तो वी शुड नॉट एवर एक्सपेक्ट के वो हमें उस तरह से फीडबैक देगा। देखिए, इंस्टीट्यूशंस में लोग काम करने जब आते हैं तो उनका एक माइंड सेट होता है, और कोई भी जब घर से काम करने के लिए निकलता है तो वो असल में पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत कमाने के लिए भी निकलता है, जो कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अब, जैसे इमर्जिंग ह्यूमन वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस का आज का हमारा टॉपिक है, इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। बहुत सारी रिफॉर्म्स आ चुकी हैं नई, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुकी हैं इस मामले में कि हम एक एम्प्लॉय को जो रिप्यूट देनी चाहिए, जैसे आपने अभी बड़ी प्यारी बात की कि हम अपने कस्टमर को तो बहुत रिप्यूट देते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी पलकें बिछा दें, एक इदारा जो है वो कहता है कि मैं अपने कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर लूं, तो जो अल्टीमेटली हमारे नहीं करेंगे, हम उनकी वैल्यूज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम उनकी फैसिलिटेशंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हाउ कैन वी प्रोड्यूस द 100%। और मैंने जितने भी इदारों में अभी तक काम किया, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे, हमेशा हमने ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पे काम किया कि जिस पर्सन की जो भी डेफिशिएंसी है हम उसको ओवरकम करें और उसको साथ लेके चलें। और ये चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते जाएं आगे, तो इसमें एक जो बेसिक प्रिंसिपल है ना DEI का, जिसमें मैं बात करूंगी कि डाइवर्सिटी इज अ टाइप ऑफ रेस in the form of genders and varied experiences in the form of all terms and walk of lives। दूसरी बात मैं करती हूँ इक्विटी की, कि अगर हम फेयर ट्रीटमेंट नहीं रखेंगे ना बिटवीन द एम्प्लॉयज, तो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो डिमोलिश होना शुरू हो जाती हैं। वी कैन नॉट गेन आर 100% आउटपुट, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा अपना कस्टमर लेना चाहते हैं मार्केट से, तो उसके लिए हमें बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। बेहतरीन फैसिलिटीज़ हम तब प्रोवाइड करते हैं जब हमारा जो एम्प्लॉय है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, वो मेंटली रिलैक्स हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड हो,
प्लस सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो अच्छे तरीके से एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारे साथ जो है ना जैसे डिमांड्स और नीड्स ऑफ द टाइम है उसके साथ हमारे साथ मूव ऑन करे। तो द थर्ड वन इज इनकल्जन, डेफिनेटली द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हम जब तक किसी काम को ये सोच के नहीं करेंगे कि ये मेरा काम है, इस कंपनी के साथ मेरा अपना रिजल्ट जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है। जब हम ये सोचते हैं और वो मालिक जो कंपनी का ओनर है वो ये सोचे कि अगर मैं अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट नहीं करूंगा प्रॉपरली तो मैं इससे प्रॉपर आउटपुट कैसे लूंगा। तो वी हैव टू सेटल डाउन द प्रिंसिपल्स एंड प्रायोरिटीज फॉर अ कलेक्टिव बिहेवियर इन अ सेम वर्क प्लेस। अगर हम इसमें फोकस रहते हैं इन क्रिएटिंग द पॉजिटिव inclusion and supportive place, तो definitely we will move towards the world which can be in our imagination। जो हम सोचते हैं कभी ख्वाबों में ख्यालों में कि हम एक ऐसी चीज़ को प्रोड्यूस करें या ऐसी दुनिया को प्रोड्यूस कर लें जिसमें कि सब लोग ही अच्छे हों, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब हम किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं, हमने उसकी हायरिंग के लिए क्या एक ट्रांसपेरेंट हमने एक क्राइटेरिया सेटल डाउन कर लिया है। जब हमने कर लिया है तो क्या हमने उसकी जेडीज इस तरह उसके सामने डिस्क्राइब कर दी हैं कि हमें लगता है कि वो इजीली हमारे साथ सरवाइव कर लेगा। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पूरी जेडीज नहीं बताती हैं अपने एम्प्लॉयज को, उनको सफर करना पड़ता है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, लेकिन जो एक एम्प्लॉय है ना वो फॉर द टाइम बीइंग आपके साथ कमिटेड होता है और वो फुली स्ट्रगल में होता है कि मैं बाय द हुक और बाय क्रूक इन चीज़ों को अटेन कर लूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमारा, उसको चाहिए कि वो प्रॉपरली इन चीज़ों को चैनलाइज करें, कि जो भी पर्सन उनके साथ स्विच करता है इन टर्म ऑफ एनीथिंग, वो उसको प्रॉपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके हैंड ओवर कर दें। क्योंकि जैसे ही हम फर्स्ट डे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर लेते हैं तो वी आर फुली कमिटेड। उनमें से अगर वो 10 नहीं पूरी करता तो 3-4 कर लेगा, अगले दिन वो 5-6 कर लेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड स्लोली एंड स्टेडी वी विल डेफिनेटली will be able to compile a very good and sound system। नेक्स्ट मैं इस पे बात करूंगी कि हमने जो एआई इंट्रोड्यूस कराया है, तो वी हैव टू इंश्योर टू बिल्ड एआई इनटू द ह्यूमन लूप्स, नॉट थिंकिंग इनटू इंटीग्रेटेड द ह्यूमंस इनटू एआई लूप्स। तो इंसान ने एआई को अपनी हेल्प के लिए बनाया है। बहुत सारी कंपनीज में एआई ने ऐसी स्पेसेस ले ली हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद अब इंसान की जो है ना वो वैल्यू डिक्रीज हो गई है क्योंकि एआई छा गया हर जगह पे। और इसमें किसी हद तक हमारे माशरे में इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि हम हर चीज़ को पढ़ते कम है और जितना हमने एक सोशल मीडिया पे उसके बारे में सुना, उसके बारे में जाना, हम ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर लेते हैं। हमारे लोगों की सर्च कम है, उन लोगों के पास स्कोप कम है अपनी इंफॉर्मेशंस को रिकॉल करने का, अपनी इंफॉर्मेशंस को टैली करने का। तो हम जब तक इन चीज़ों को देखेंगे कि एक जो एआई है वो ह्यूमन सपोर्ट के लिए है ना, ह्यूमन उसकी सपोर्ट के लिए नहीं है। एआई ने तो उतना ही वर्क करना है। बहुत सारे मैंने एम्प्लॉयज ऐसे देखे हैं जो कि इस चीज़ से डरे हुए हैं कि चूंकि एआई आ गया है तो जी यहाँ यहाँ पर भी एआई काम कर लेगा, यहाँ भी एआई काम कर लेगा, तो हम किधर जाएंगे। तो एआई जो है वो इंसान ने ही डिज़ाइन किया है। हमें अपने डेस्टिनेशन के लिए वी हैव टू चेंज आवर फोकस। अगर हम अपने आप को इस तरह फील करेंगे कि शायद हम अब इस रेस में बहुत पीछे रह गए हैं, तो वाकई वो दिन फिर दूर नहीं होगा कि जब हर तरफ फिर एआई होगा और लोग सारे घरों में बैठे हुए सोच रहे होंगे कि व्हाट वी हैव टू डू। सो हमें अपनी वैल्यूज अपनी जगह पर मनवानी है। और दूसरा मैं बहुत सारे बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, मैं उनसे ये भी उनको एक सजेशन दूं कि नेवर लेट डाउन योरसेल्फ। आप कहीं पर जाएं तो यू शुड हैव योर कंप्लीट ऑन पर्सनैलिटी, कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं आपके अपने भी कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, आपकी अपनी कुछ बिजनेस माइंड होना चाहिए, आपका अपना कुछ ओरिएंटेशन माइंड होना चाहिए, जिससे कि आप जो अगला बंदा है आप उसको कन्विंस कर सकें कि आई विल डू एवरीथिंग बट रिमेन इन माय सर्कल with due respect, and definitely when they will
give respect and they will attain it. सर ने बहुत अच्छी बात की, बहुत सारे जो थे हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स की, नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स वी कैन वॉच इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट स्टिल देयर आर मेनी फ्लॉज वी कैन सी, but inshallah hopefully we can overcome on that issues. But emerging human values in an organization take a very important role in all walks of life. Whenever we are not going to settle down the rules and regulation for any kind of work, then we will never ever expect to attain the 100% output. And if we want to 100% output, then we should plan our resources and which are directly linked and flexible towards the employees. क्योंकि एम्प्लॉयज जब तक सेटिस्फाइड होकर हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेगा, वी विल नॉट बी एबल टू अटेन आवर गोल. और हमें अपना गोल अटेन करने के लिए अपनी हर चीज को ट्रांसपेरेंट और स्मूथ रखना पड़ेगा. उसमें हम देख सकते हैं कि पर्पस हमारा क्या था, हमने लोगों को बताया क्या, फिर हमने अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया या नहीं किया, हमने एम्पैथी एंड कंपैशन पर कितने % पे काम कर चुके हैं हम, हाउ मच फ्लेक्सिबल वी आर इन द टर्म ऑफ अडॉप्टिंग द न्यू थिंग्स एंड चैलेंजेस ऑफ द मार्केट. उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटीज हमारी क्या रही, हम अपने टारगेट को लेके, अथेंटिसिटी एंड वल्नरेबिलिटी, कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ हम लोगों ने क्या, उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं. तो ये जो मामला है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर ह्यूमन वैल्यूज का, स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर में एंड गवर्नमेंट सेक्टर में, ये गिव एंड टेक है. जैसे ही हम किसी को कोई अच्छी चीज देते हैं तो देन वी कैन एक्सपेक्ट द गुड थिंग्स रिवॉर्डेड बाय अल्लाह एंड रिवॉर्डेड बाय द पर्सन हु इज फेसिंग इन फ्रंट ऑफ अस. So this is all from my side. Anything else? Thank you If so someone much. want any Thank you question, so then much, you Ms. can raise Bashir. the question, please. And over to you, You Dr. have done a Zishan. great job. You have done a great job. Thank you so much, Nosheen. You have done a great job over here. I will request Mehtab Zara, an Thank you so educationist and much. a public speaker, who joins today's session. I will request that they guide and give some experience ideas regarding the today's topic. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Am I audible? Yes, you are audible. Thank you very much, everyone. And thank you so much, Nosheen and Sir Zishan, for your valuable feedback. And I 100% agreed with your opinion. And before coming towards the points, let me introduce myself. I'm Mehtab Zara Kazmi from Muzaffarabad chapter, and I'm working being the regional trainer with APSEC Secretariat and as a teacher as well, and as well as I'm working being the content writer with ISPR's Hilal Publications. And it's my very first time to be the part of this wonderful platform, and I'm positive that I'll be able to learn so many new things and exposures through this platform. Thank you very much once again. And now Thank you coming so much, towards the, Mehtab. You have 9 minutes to wind up the things and conclude out the things, because it's 9 minutes okay, left of the session. So kindly okay, sir. conclude it in 9 minutes, please. Thank you. Sir, yes, sir. I would like to continue the discussion which is going on. Sir Zishan has given the very valuable feedback, and Ma'am Nosheen, she also told about all the aspects like adaptability, flexibility, transparency, and trust, and diversity. And few things I would like to add with respect to collaborative culture. That the focus on the move towards teamwork and collaborating work is very much important within the organization systems. Organization जब अपने अंदर उसमें collaborative work की तरफ या team work की तरफ promote करना चाहिए. And then one more thing, that employee empowerment. Talk about empowerment, employees जो है, initiatives जो है, decisions making की तरफ और ownership की तरफ
एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आना चाहिए. When they will feel the ownership, when they will have the ownership with respect to any task, obviously उनका जब तो उनका कैलिबर और उनका वर्क जो है वो प्रोसेस वो फास्ट होगा और वो अच्छा होगा. And it is always said that the person is supposed to be learned till the grave. And it's very right. मतलब अपने being the employee or being the part of the organization, आपने अपनी learning opportunities के सामने full stop नहीं लगाना. Every day should be a new learning day for you. And at the end of the day, when you are going to end up your day, you should be able to learn at least one point, one thing on daily basis. This is the secret of growth and obviously the prosperity. And मैम नौशीन जिस तरह उन्होंने बात की AI के बारे में, उसके यूज के बारे में, obviously this is the threat or this is the fear which every employee जिसके पास एक limited knowledge है ना, वो because of few examples in the market or in the society, they are supposed to think or they are compelled to think कि बस now their work is going to be ended up very soon. जो कि ऐसा नहीं है. And I do agree with Ma'am Nosheen's point of view that we being the employee, we should think that we are AI is here to assist us. We should not make AI our boss. We should make AI our assistant, and then obviously we will be able to learn and we will be able to get something or obviously at some point. और जैसे उन्होंने पहले कहा कि everything is rewarded by Almighty. हमें at times जो होता है ना, ये जो आपकी social health है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, इमोशनल सोशल हेल्थ, इट इज दे आर बोथ कनेक्टेड विद ईच अदर. तो एम्प्लॉयज की जो है वो इमोशनल हेल्थ सोशल हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती है. आप एक एम्प्लॉय को जब आप ह्यूमन वैल्यूज को एक्नॉलेज करते हुए आप एप्रिसिएशन देते हैं, आप रिकग्नाइज करते हैं उनकी एबिलिटीज को, उनके परफॉर्मेंस को, उनके वर्क को, तो ऑब्वियसली दैट एम्प्लॉय more calm mindset and more prosper mindset will be able to produce his or her best in every field of life. और बाकी जहां तक बात है ह्यूमन वैल्यूज की, ऑब्वियसली बीइंग द एम्प्लॉयज को मुझे जो एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है वो दैट लीड्स टूवर्ड्स ऑब्वियसली द सो मच इश्यूज रिगार्डिंग इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज. और उसमें ये है कि हमें बीइंग द part of any organization, we should give respect to ourselves first of all. हमेशा देखा गया है कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं they obviously they for the sake of few benefits they just leave their grace, they just leave their self respect and obviously जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उसको सफर करना पड़ता है बाकी members of that society को. So it was all from my side, Sir Zishan. Thank you so much. And already the discussion was going so well, and very valuable points were already discussed by our co-panelists. Thank you so much. Thank you so much, Mata Zara, and thank you so much, Nosheen, as well. And I will request Ishan Arif sir to conclude this session along with the contents and the feedback, because I highly impressed your feedback comments as well, and inshallah we will meet in the next session as early as possible. Thank you. Inshallah. Thank you so much. Well, thank you so much, Ms. Nosheen and Ms. Mehtab, for your extremely valuable inputs on the today's topic. मैं कल इनफैक्ट मैं एक यूनिवर्सिटी में IOBM के अंदर मैं बेसिकली इंगेज हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी. तो
वहाँ पे मैं हमारे एक डाइनिंग हॉल है वहाँ बैठा हुआ था, तो आई वॉज डूइंग डिनर। तो दो बंदे जो हैं बेसिकली वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे वर एक्चुअली इंगेज्ड इन सम कम्युनिकेशन। तो वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें कर रहे थे, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनकी बातें जो है वो सुनना शुरू हो गया। देवर सेइंग दैट कि जब इंसान को कुछ करने को नहीं था तो उसने देखा क्या करना चाहिए, तो उस वक्त जब टीवी आया तो इंसान ने अपने आप को टीवी के अंदर इंगेज करना शुरू कर दिया। और उस वक्त उसका जो दिमाग था वो बजाय नई चीजों को सोचता, नई चीजों को करता, तो उसने अपने आप को इंगेज किया कि जी हम एक फालतू बैठे हुए हैं तो एक और फालतू काम कर लें। उसी तरीके से जब कंप्यूटर आया और हमारे हाथ में कीबोर्ड आया, तो जब हमने टाइप करना शुरू कर दिया तो हमारी जो हैंड राइटिंग थी वो खराब हो गई। और लाइक उस वक्त हम बड़ा खताती के ऊपर, हाँ, अगर हम अपने बचपन की बात करें, इनफैक्ट मैंने जब स्कूलिंग की है तो उस वक्त हमारे यहाँ भी एक सेटअप होता था कि एक तख्ती होती थी, उसके ऊपर हम एक कलई से पूरा हम उसको पहले ग्रे करते थे, कलम के साथ हम उसको जो है वो उसके ऊपर राइटिंग करते थे, और बाद में उसको क्लीन करके दोबारा से उसको तैयार करना। इनफैक्ट मुझे याद पड़ रहा है, जब मैं अपने होमवर्क करता था तो मैं एक नया पेन, इंक पेन ला के उसकी लिप को मैं थोड़ा कट करता था ताकि वो कलम बन जाए, उससे मैं अपना होमवर्क करता था। तो जब हमारे हाथ में कीबोर्ड आ गया तो वो सारा का सारा जो सेटअप था हमारा वो एक साइड पे लग गया, लोगों की जो राइटिंग थी वो खराब हो गई। उसी के साथ साथ जब आगे चल के एंड्रॉइड फोन्स हमारे हाथों में आ गए तो हमारा जो ओवरऑल, यानी कि पहले क्या होता था कि एक फैमिली नॉर्म्स के तौर पे अगर टीवी भी देख रहे हैं तो हम सब सब साथ बैठ के एक जगह पे देख के एक ही मीडियम के ऊपर हम एंगेज हैं और साथ बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं। फिर जब एंड्रॉइड आ गया तो उसने हमारा अंदर एक गैप क्रिएट कर दिया। अब आप यूजुअली इस चीज को नोट करते होंगे कि जब आप एक जगह बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें ज्यादातर लोग जो होंगे वो आपस में बात करने के बजाय अपने एंड्रॉइड फोन से बातें कर रहे हैं, यानी दे आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद दोज पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देम, और जो उनके पास बैठे हैं उनके साथ वो इतनी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा एडवांसमेंट, इनफैक्ट एडवांसमेंट तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इससे हम बेनिफिट्स भी गेन कर रहे हैं, बट स्टिल हम अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लूज भी कर रहे हैं। अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ, इन तमाम चीजों को हम बेसिकली लूज कर रहे हैं, अपने एथिक्स को, अपने नॉर्म्स को लूज कर रहे हैं। तो एआई के हवाले से भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि एआई ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, कि वो हमें मफलूज कर रहा है कि हम जो थॉट प्रोसेस जो है वो हम अपना इस्तेमाल करते थे, कहते हैं ना बड़े कहते थे जहन को जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है, तो वो काम एआई करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारे लिए एक बैड एक वो है, सेगमेंट है। बहरहाल, थैंक यू सो मच टू ऑल आर पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स और फॉर देयर वैल्यूएबल इनपुट्स। बहुत ही मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और आई होप कि इंशाल्लाह अगले जितने भी सेशन हमारे होंगे इसी तरीके से